bracket. Bracket is also called parenthesis. Good evening. Okay. So let us see some equations with brackets. This is 15.44. Brackets, so you have already done in a way when you, so basically bracket में क्या होता है, you suppose I write 5, then I put a bracket x plus y. So this is in parenthesis. This portion is parenthesis. And bracket के बाहर, if this is the number, that means it is getting multiplied. So 5 is getting multiplied by this whole group. And we have seen the distributive property of multiplication, which says that this 5 will be multiplied by x, and then it will be distributed and multiplied by positive y also. ये तो हमने पहले किया हुआ है, तो इसी के कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं. हाउ डू वी यूज parenthesis? So equations with parenthesis. Parenthesis means brackets. Decimals and fractions. So numbers can be in form of decimals and fractions. For example, यहाँ पे number है 0.5f. Now we have to find f because it says solve for f. Now if you see within the parenthesis, these are two unlike terms because this has a variable f. This is only a constant number. So you cannot, bracket के अंदर there is subtraction, but you cannot do subtraction. So this whole bracket, this whole group is to be multiplied by 4. So इसको multiply कर दो फटाफट. When you multiply 4 by the first number, 0.5 into 4, 4 into 0.5, 4 5s are 20. Then you have decimal after one place. So put decimal after one place, so it becomes 2. 2.0 is 2. So when you multiply 4 by 0.5f, it becomes 2f. Now multiply this 4 by negative 0.25. So this 4 is positive, this is negative, and you have to multiply. So answer will be negative 4 multiplied by 0.25. 25 into 4, so we know is 100. And there this decimal is after two places, 1 and 2. So after two places, I'll put a decimal, it becomes 1.00, which is equal to 1. So this second number is 1. Is equal to right side में 6 plus f. अब तो simple हो गया. What will be f equal to? Who will tell me? शाबाश, जल्दी से बताओ. हर्षल. F will be equal to? So? 7. So this f you will bring here, transpose it on the left side, so it becomes, if this is positive plus, this operation becomes minus. So 2f minus 1f, right side में is 6,
Here it is -1. If you transpose it here, it becomes +1. 2f minus f is 1f, 7. So yeah, you have found the value of f. That is what you are supposed to find. So you write s, so f is equal to 7, and then you can check. Now there are some numbers in form of fractions. So don't get confused. ये तो number ही है. So what will you do? Now there are two sides. This is left hand side. This complete is right hand side. So 3h is equal to 7 multiplied by this whole group minus 10. So bracket ko, you try to open the bracket by multiplying it by 7, distributive property. हो जाएगा ना, easy है ना? राजवीर समझ आ रहा है? Yes. हिमांशु Yes, sir. समझ आ रहा है? फिर इसको खुद प्रैक्टिस कर लेना. So this is your equations with parentheses. So try to do these 4 questions on your own. Next is equations reducible to linear form. Linear form क्या होता है? हमने last time पढ़ा था linear form. Linear equation. What do you mean by linear equation? Who will tell me? The power will be 1. हाँ, जिसका variable का maximum power is 1. So power, maximum power is equal to 1. So that is the linear equation. Where power is 2, if power is 2, for example, x square, then this equation becomes quadratic equation. Quadratic equation. So if we see this one, 15.45. Now equations we can reduce to linear form. Who wants to join? Let us see this 15.45. Linear form. अच्छा, there is standard linear form कैसे लिखते हैं? Linear form का जो लिखने का तरीका है, this linear equation. Linear equation का लिखने का क्या तरीका है? ax plus by is equal to c. लिखो, this is the standard form of linear equation. How you write linear equation? लिखो इसको. So ax plus b so linear equation can be in one variable, it can be in two variables. For example, यहाँ पे if I write now this इसमें a, b and c, a, b and c are constant number, constants, and x and y are variable. X
x and y are variables. So it can be if value of b is 0, फिर क्या बन जाएगा ये if अगर b 0 हो जाता है, if b suppose b is 0, तो ये तो हट गया, then you have ax is equal to c. और अगर नंबर में लिखूं, फॉर एग्जाम्पल 5x is equal to 10, so this is also a linear equation. और इसको मैं यहां लाऊंगा तो आई कैन राइट दिस सेम एज 5x minus 10 equal to 0. So this is also linear equation. तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला, this I can write as ax plus by minus c is equal to 0. यहाँ c को मैंने ट्रांसपोज इस साइड कर दिया, so it becomes minus c और राइट साइड में 0 हो जाएगा. So this is also standard form of linear equation in two variables. Now suppose if we have this equation, अब लेफ्ट साइड में क्या है, 3 minus 2x upon 1 minus 2x is equal to 3 upon 5. तो हम क्या करेंगे, अब इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लीनियर फॉर्म क्या है, अब इट हैज ओनली वन वेरिएबल, सो लीनियर फॉर्म विल बी, एक वेरिएबल में क्या होगा, it will be ax plus b is equal to 0. ax plus b is equal to 0, where a and b are constant number, only one variable is there. So अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, that means जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, इट इज बिलो द डिवाइडिंग लाइन. So we will try to change this so that all x, they come in the numerator in one, there's no dividing line. So कैसे करेंगे हम इसको? Now if you see ये जो dividing line है, for example 3 minus 2x divided by 1 minus 2x, ये जो dividing line है ये यहाँ से यहाँ तक है. That means in a way it is also a bracket, because this 3 minus 2x and 1 minus 2x, because they are above and below the dividing line, वो एक प्रकार से ब्रैकेट में है, they form a group. अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे 3 minus 2x upon 1 minus 2x is equal to 3 upon 5. अगर हमने देखा कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है, दैट इज इन द डिनोमिनेटर, एंड वी वांट टू रिमूव दिस. डिनोमिनेटर मींस इट इज डिवाइडिंग, ये पूरा ये जो ऊपर वाला है 3 minus 2x, इसको डिवाइड हो रहा है किससे, इस पूरे ब्रैकेट से. तो इसको रिमूव करने से, इसको रिमूव कैसे करूंगा मैं, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड में इस पूरा जो ब्रैकेट है 1 minus 2x, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा. अब लेफ्ट साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किसको किया, 1 minus 2x, सो मुझे राइट को भी करना पड़ेगा 1 minus 2x, तभी तो इक्वल का साइन ठीक रहेगा. अब उससे क्या फायदा हो गया कि ये जो डिनोमिनेटर में x था ये हट गया, तो लेफ्ट साइड में आई गेट 3 minus 2x, only this. You can keep it in bracket also, is equal to
3/5 multiplied by 1 minus 2x. अब इसको either you just multiply this number by 1 and then again multiply this number by minus 2x. अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में बार बार वो डिनोमिनेटर में 5 आएगा, सो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. तो हम देखें तो इस 5 को भी रिमूव कर सकते हैं. अगर मैं इस 5 को, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को 5 भी हट गया डिनोमिनेटर से. देन आई विल गेट द लीनियर फॉर्म. और आई कैन डू वन थिंग, जो ये बेसिक जो इक्वेशन है 3 minus 2x 1 minus 2x is equal to 3/5. What I will do, I will cross multiply. That means मैं इस पूरे को मैंने लास्ट टाइम स्टेप में क्या किया था, पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया. सो इन ए वे इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा. और यू कैन थिंक इन स्टेप वाइज, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. फॉर एग्जाम्पल, मैं लेट मी रिमूव दिस. यहाँ पे इफ यू सी हमने क्या स्टेप किया, फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड बाय this whole denominator, both sides, right and left. Then we got this. Then right side mein we have 5 over here. So in order to remove this denominator, we multiplied by 5 here as well as here. समझ में आ रहा है? Is it clear? यानी इसको मैंने 1/1 minus 2x को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया. सो आई हैव 3 फर्स्ट आई विल राइट 3 minus 2x upon 1 minus 2x is equal to 3/5. Now in order to remove this, I'll multiply this whole 1 minus 2x and multiply this by 1 minus 2x. अब ये रिमूव, ये वाला ब्रैकेट ये रिमूव हो गया. अब मेरे को ये डिनोमिनेटर में है, so I can remove this by multiplying. So if I multiply this 5 by 5, तो ये 5 और 5 हट जाएगा. और 5 को मैंने राइट साइड, राइट, दिस इज माय राइट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ पे 5 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड से. ठीक है. अब मेरे को क्या मिल गया, this is again in a bracket. अब उसमें इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, इसमें x को x से, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अगर इफ आई, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली a bracket, this is one group, this is a group, this is also a group, so you can cross multiply. इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको, तो इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो. सो वी विल गेट 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3 minus 2x is equal to 3 multiplied by this 1 minus 2x. This is a simpler way.
सो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 3 15 माइनस 10x इज इक्वल टू 3 माइनस 6x। अब ये नेगेटिव 10x है, इसको मैं यहां ले जाता हूं, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो और इस 3 को यहां लाता हूं, तो 15 माइनस 3 और ये नेगेटिव 10x यहां गया तो पॉजिटिव 10x माइनस 6x, तो दिस इज पॉजिटिव 4x, दिस इज पॉजिटिव 12। therefore x will be, इस 4 को फिर यहां ट्रांसपोज किया, 12 डिवाइडेड बाई 4 which is equal to 3। ये समझ में आया? हिमांशु, सोनिया थापा, राजवीर, हर्षल, समझ में आया? यस सर, यस सर। तो क्या इसका आंसर आया था हमारा x इज इक्वल टू 3। we will write x equal to 3। but next question, you all of you attempt to do it। मैं बोलता चलो अब जल्दी से करो, अपनी अपनी नोटबुक में करो। तो अब हमको पता चल गया कि हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से, इफ फॉर एग्जांपल आई राइट 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखता हूँ, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 है ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 1/2, this is also 1/2, they are equivalent fraction। so if I say 3/6 is equal to 4/8, and if I cross multiply, 8 3s are 24, 6 4s are 24, तब भी इक्वल रहेगा। तो इसी तरीके से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so that we get linear form। linear form is ax plus c is equal to 0 if only, or if there is only one variable। yeah, ax plus b also you can say, instead of c let me write b, so I can say ax plus b is equal to 0। a and b are constant, only one variable is there। Shabash, find the value of x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस ऊपर वाले ग्रुप को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब तो इजी, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 5 are 25x, हाँ 16 into 3 is 48x minus 16 4s are 64। अब x को एक साइड ले जाओ, 25x को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, सो 48 माइनस 25 और इसको यहाँ पे ला जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, so this will be 64 plus 5 is 69 and this is
23. So x क्या होगा? 69 divided by 23, which is 3. है ना? So x is 3. ऐसे you can do other questions also. Okay. So this is your equation reducible to linear form. जो हमने ये देखा 15.45 equations reducible to linear form. तो ये आप कर लेना. Now let us do some word problems. Word problems में word problems using linear equations. जिसमें कोई statement होगा. There will be a statement. अब हमने word problem सीखा है कि कैसे solve करना चाहिए. You remember? कैसे करना चाहिए word problem solve? क्या सीखा था हमने? Sir, we have to write given. Then What we have to find. so we will divide it into two parts. Left side में we will write given. जो given means given information. And right में we will have to find something. So जो भी information whatever is given you should write here. But don't write it in English language. Write it in mathematical language. Mathematical language is expression. You have to जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, सपोज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कुछ, उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथ एक्सप्रेशन. And from these given information, which can be one information, two information, or three pieces, from these given information, you create an equation. So you create an equation. Equation होगा, उससे you will find x, find that unknown variable. और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा वो. Now let us see some. अब देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं. Kriti has 20 coins that make up a total of ₹41. अब यहाँ पे these are all given information. साथ में लिख रहा है in the denomination. Denomination होता है जो उस होगा वो उसका डिनोमिनेशन है. सो इसके पास, कृति के पास कितने कॉइन्स हैं? 20 कॉइन्स हैं. और टोटल उन कॉइन्स को जब उनका वैल्यू ऐड करते हैं तो वो टोटल बन जाता है 41 रुपीज. सो दिस इज रुपीज अमाउंट. और कॉइन्स कौन कौन से वैल्यू के हैं? 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी. तो कुछ, अब जैसे ये 1 रुपी का कॉइन है, ये मान लो 2 रुपी का कॉइन है, और ये 5 रुपी का कॉइन है. वो कितने कॉइन्स हैं वो मालूम नहीं है. टोटल जो कॉइन्स हैं दे आर 20.
और तो उनका अमाउंट जब ऐड करेंगे वो 41 है. सो दिस इज ऑल्सो गिवन इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो गिवन इंफॉर्मेशन. 1.2 रुपी का कॉइन, 5 रुपी का कॉइन, ये भी इंफॉर्मेशन है. फिर एक और इंफॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स आर 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स. जो 2 रुपी का कॉइन है ये, इनका जो नंबर है, यानी कि 2 रुपी कॉइन, you maybe there are 2 coins or there are 3 coins. They are 3 times the number of 5 रुपी coin. अगर 5 रुपी coin मान लो एक है, I have 1 coin, तो 2 रुपी के coin are 3 times. They are 3 coins. They are 3 coins. ये अब यहां से देखो, ये क्या बता रहा है, ये एक प्रकार से रिलेशन बता रहा है. किसका रिलेशन बता रहा है? 5 रुपी कॉइन का और 2 रुपी कॉइन. फिर क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन डज कृति हैव? नाउ दिस यू हैव टू फाइंड. कैसे फाइंड करोगे? अब क्या 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 गिवन इंफॉर्मेशन है? नाउ ट्राई टू राइट इन योर नोटबुक इन दिस मैनर, कि हम लेफ्ट साइड में हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे. ठीक है? उससे देन फ्रॉम दैट we will create some equation, और फिर हम राइट में फाइंड करेंगे. अब राइट में क्या हमें लिखा हुआ है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी कॉइन, हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन डज कृति हैव? हम्म. अब हमारे को रिलेशन तो इन दो का पता है, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन. इफ अगर 5 रुपी कॉइन एक्स है और 2 रुपी कॉइन कितना होगा? 3 times, then that is 3x. How will we find? कैसे ट्राई करेंगे? अब हमारे को एक्चुअली ये भी नहीं मालूम है कि 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं और 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं. एक तो ये भी नहीं मालूम है, और 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं वो तो फाइंड करना है, वो भी नहीं मालूम है. तो वी डोंट नो अबाउट 2 रुपी कॉइन्स, वी डोंट नो अबाउट 5 रुपी कॉइन्स, वी डोंट नो अबाउट 1 रुपी कॉइन. बट वी नो उनका टोटल अमाउंट जो है वो 41 रुपीज है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 20 है. हम्म.
कोई हिंट दे सकता है कुछ? फिर हम यहाँ लिखेंगे। शाबाश, कुछ इंफॉर्मेशन बता सकता है? क्या क्या लिखें हम? Sir, there are 20 coins which make total 41 हाँ। rupees. वो लिख सकते हैं. अब इसमें थोड़ा सा ये सोचना है कि अगर हम देखें जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें वी विल कीप ओनली वन वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल हो जाएंगे फिर थोड़ा और डिफिकल्ट है। अब इसमें we have to find how many 1 rupee coin are there, so we can keep that also as x, but जो रिलेशन दिया हुआ है पहले उसको लेट अस फोकस ऑन द रिलेशन। रिलेशन क्या है? देयर आर जो 2 रुपी कॉइन है वो 5 रुपी कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है। सो अगर मैं 5 रुपी कॉइन एक्स बनाऊं, लेट मी राइट 5 रुपी कॉइन। फॉर एग्जाम्पल, if I write let 5 rupee coin be x, तो 2 रुपी कॉइन कितने होंगे? How many coins will be there? Because it is written 3 times. 2 rupee coins are 3 times, so that will be 3x. और टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स you have how many coins? 20 coins. Total coins 20 है। तो अभी देखो ये हमारे को ये इंफॉर्मेशन एक तो ये दिया हुआ है कि 2 रुपी कॉइन जो है दैट इज 3 टाइम्स मोर देन 5 रुपी कॉइन। तो अभी मैंने 5 रुपी को x बना दिया तो 2 रुपी कॉइन 3x हो गया। टोटल कॉइन्स 20 है। तो जो 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपी कॉइन वो कितना होगा? टोटल कॉइन्स तो 20 है, सो कितना होगा? टोटल में से आप माइनस करो 20, ये टोटल कॉइन्स है, उसमें से 5 रुपी कॉइन्स तो x है, तो 5 रुपी कॉइन माइनस किया। फिर 2 रुपी कॉइन 3x है तो 3x भी माइनस कर दिया। तो ये जो नंबर है ये ब्रैकेट में दिस नंबर, दिस विल बी नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन बिकॉज टोटल आर 20 कॉइन्स। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन, वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, आई एम राइटिंग दैट इन माई लेफ्ट, ऑन माई लेफ्ट साइड। अब इनका टोटल वैल्यू भी दिया है, एक और इंफॉर्मेशन दिया है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? इज 41 रुपीज। तो वैल्यू कैसे बनता है? सपोज इफ आई से, अगर मैं कहता हूं आई
I have 5 coins of ₹2 each. यानी कि जो 2 रुपए की कॉइन है, I have 5 of them. तो उनका टोटल वैल्यू कितना होगा? 2 multiplied by 5 coins. That will be 10 rupees. So that total value I know is 41. So इस 41 से और अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे को मिल गया. 5 रुपी कॉइन X है, 2 रुपी कॉइन 3X है, 1 रुपी कॉइन ये नंबर है और टोटल वैल्यू 41 है. तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ कॉइन को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल गेट एन इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 5 कॉइन्स and sorry, I have X coins. X, these are the numbers. X number. 3X is a number. 20 minus X minus 3X is a number. Whereas ये जो है, these are value. 1 रुपए की कॉइन है, 2 रुपए की कॉइन है, 5 रुपए की कॉइन है. If I multiply the value with this number, I'll get the total value. जैसे 5 कॉइन है, सॉरी 5 नहीं है, X कॉइन है. I have X number of coins and each coin is 5 rupees. So total होगा उसका 5X. तो ये तो हो गया. Then I have 3X. This is number. So I have 3X. This is a number of coins multiplied by उसका each coin value is 2 rupees. So I multiply this by 2. Then I have, this is a number. So I have another bracket, 20 minus X minus 3X. और each coin का value is 1. और इन तीनों को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे को टोटल वैल्यू क्या मिलेगा? 41, क्योंकि टोटल अमाउंट इज 41. सो आई विल गेट दिस इक्वेशन और इससे मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा. तो वंस इफ अगर मैं x का वैल्यू मिल गया तब मेरे को सारे कॉइन्स मिल जाएंगे. 5 रुपए के कॉइन x हैं, 2 रुपए के कॉइन 3x हैं, 1 रुपए के कॉइन इस इक्वेशन से. इसको अगर थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, लेट अस go to the next question. वहां से थोड़ी प्रैक्टिस ठीक मिलेगी. Let us see this question. इसे थोड़ा इजी और समझ में आएगा. Let us try this. पढ़ो, कौन पढ़ेगा? A positive number is 5 times another number. If we add 2 to both the numbers, then one of them becomes 4 times the other. Okay. Find the smaller number. Let us try this question. So you have, it is divided into 2 parts, given and find. Find क्या करना है? Find the smaller number. So हम करेंगे let smaller number, जो smaller number है, be x. अब ये क्या कह रहा है? अब गिवन इंफॉर्मेशन देखते जाओ. व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? नंबर 1, a positive number is 5 times another number. So smaller अगर x है, दूसरा क्या होगा? That means one of the number is x, another number is 5x. 5 times 5x. 5 times 5x. Now we have, इस इंफॉर्मेशन को मैंने मैथमेटिकल लिखा है. मैंने लिखा 1 number is x, another number is 5x. Now comes the next line.
if we add 2 to both the numbers, then one of them becomes 4 times the other. अब मैं if we add 2 to both the numbers, अब मैं इसको भी 2 ऐड करूंगा और इसको भी 2 ऐड करूंगा. So क्या बन जाएगा पहला नंबर? If I add 2 to first number, it will become x plus 2. If I add 2 to another number, second number, it will become 5x plus 2. एक ये बन गया, एक ये बन गया. उसके बाद ये रिलेशन बता रहा है. Then one of the numbers, ये, becomes 4 times the other. एक नंबर दूसरे से 4 टाइम्स बन जाएगा. अब कौन 4 टाइम्स बनेगा? इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? There are 2 numbers. This is number. Suppose this is number A. This is number B. बड़ा नंबर कौन सा है? Sir, B. B is bigger. So B is bigger number. So इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे, then one of them becomes 4 times the other. That means जो ये bigger number है, ये कितना बन जाता है? दूसरे से 4 times बन जाता है. So I can write 5x plus 2. This becomes 4 times the other number. Other number तो ये है x plus 2. मल्टीप्लीकेशन को हटा देते हैं हम. अब देखो, अब मेरे को ये इक्वेशन मिली है. सो ये इफ यू आर एबल टू क्रिएट दिस इक्वेशन, अगर आप ये इक्वेशन बना सकते हो, फिर तो इजी है. फिर तो आपको x मिल गया. अब इसको ओपन करो. 5x plus 2 is equal to 4x plus 8. अब 4x को यहां पे लाया. 5x minus 4x is x. इस 2 को यहां लाया, वो 8 minus 2. So x is your 6. जब x 6 हो गया, यही है. और यहाँ फाइंड क्या था हमारा? स्मॉलर नंबर x रखा. सो x is equal to 6. और यही हमें पूछा था, फाइंड द स्मॉलर नंबर. So smaller number is 6. तो ये जो स्टेटमेंट सम है, पहला वाला सम थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट था समझने के लिए, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन किया टू शो यू कि हाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व देम. अब ये देखो, ट्राई. अब ये इजी है, सभी इसको ट्राई करेंगे. शाबाश. लिखो अपनी कॉपी में, मेक 2 sections, लेफ्ट एंड राइट, गिवन एंड फाइंड. बनाओ. शाबाश. मैं भी साथ साथ में बनाता हूँ. गिवन एंड फाइंड. क्या फाइंड करना है हमारे को? बताओ. Who will tell me? Sir, we have to find Mahesh present age. हाँ, महेश प्रेजेंट एज. Yes, sir. सो जो हमें फाइंड करना है उसको लेट अस कीप दैट एज x. सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट महेश प्रेजेंट एज इक्वल टू x. तो ये अगर हमें x मिल गया तो आंसर में Hello. मिल जाएगा हमको. महेश एज विल बी 3 times his present age. Present age is x. अब इस इंफॉर्मेशन को
यहाँ जितने भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट, try to write something here from these sentences and then you create an equation. इक्वेशन किससे मिलेगा? ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ है यहाँ, ये जो इस लाइन में दिया है, अगर ध्यान से सोचोगे इसमें रिलेशनशिप भी दिया है, दो रिलेशन दिया है। एक तो दिया हुआ है, पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं, लेट अस राइट द इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? 16 years from now, 16 years from now, आज से 16 साल बाद महेश की एज कितनी होगी? हाँ बताओ, who will tell me? महेश एज आफ्टर 16 years, आज से 16 साल बाद कितनी होगी? 3x minus 16. नहीं, पहले बताओ आज की क्या एज है और महेश की एज 16 साल के बाद क्या होगी? Today's age, present age is X. What will be his age after 16 years? 16 minus x. 16 माइनस कैसे आ गया? 16. अगर आज मेरी, अगर if today I am 12 years, after 6 years I will be 18. So I am adding 12 plus 6. If today I am X, after 16 years I will be X plus 16. X plus 16. हाँ, तो ये सोचना है. So after 16 years, Mahesh age will be X plus 16. एक तो हमको ये यहाँ से ही 16 years from now, एक यहाँ ये जो ये एक सेंटेंस है उसको मैंने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, X plus 16. अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया है, समथिंग मोर इज गिवन. 16 years from now, Mahesh age will be 3 times his present age. So again, एक तो ऐसे दिया हुआ है. Again he says after 16 years, his age will be up. Again same चीज दिया है. After 16 years, his age will be 3 times his present age. So the statement gives you दो चीजें दी हुई हैं. आफ्टर 16 years क्या होगा एज उसका? बताओ. दैट विल बी 3x, क्योंकि यहां दिया हुआ है 3 times his present age. तो प्रेजेंट एज कितना है? प्रेजेंट एज तो x है, तो 16 years के बाद कितना एज हो जाएगा? 3x. तो you see, you जो भी whatever information is given, you have to convert it into equations, not equations, expressions. अब यहाँ पे I am getting 2 statements. एक तो महेश एज आफ्टर 16 years, फिर महेश एज आफ्टर 16 years. दोनों सेम होगा क्योंकि आफ्टर 16 years ये एज होगा और ये भी होगा. That means this and this has to be same. Same means they have to be equal. So I will write x plus 16 क्योंकि एक तो ये दिया हुआ is equal to 3x. So अब ये इक्वेशन इजी हो गया सॉल्व करना. सो इस x को यहाँ ट्रांसपोज किया, ये 3x minus 1x is 2x. लेफ्ट साइड में you have 16 और therefore x इस 2 को यहाँ लाया. 16 divided by 2 is equal to 8.
So you get 8. So this is how you are going to solve these statement sums. खुद try करना है. So these statement sums are very important. I'll create some more. जो book में भी questions दिए हुए हैं, हम all let us create some statement sums. Statement, इनको हम statement या word problems. तो ये आपको खूब प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस मतलब आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग वही लगाना है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आपने एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है. उससे यू हैव टू मेक एन इक्वेशन, and from equation you have to find that value of x. Okay, so this is your 15.46. अभी देखो इसमें एक और है, लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम 2. so try to do both these, 15.46 and 15.48. इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स. try 15.46 and 15.48. ये प्रैक्टिस करना है खुद. प्रैक्टिस वर्क, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, यू विल फील गुड एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस.